Hey guys, welcome back to my channel. Me, this is Kakal Gupta and saying you all hi. You are watching Gupta classes and in before video I have posted part 1 of the same chapter. The chapter name is body movements and it is from class 6. The chapter is chapter number 8 and in before video I have make you understood about the human bones, skeleton system as well as the animals bones and etc. So into the topic we are going to discuss about how do bones move, can we see bones, and about animals, how do other animals move, okay, snails, cockroach and exercise as well, okay. So before coming to the chapter or the topic, I would like to thank all of my viewers who has viewed my video and commented such a beautiful comments in my comment box. So thank you for all of them, the beautiful comments, subscriptions and likes. So thank you for all of them. And some of them are these Chama Sharma, you have commented, and Sakshi Saxena, you have commented to bring water chapter. So thank you for that. Yeah, I will bring definitely. Next chapter will be my, I think so, water chapter as you have commented. And Ishika Agarwal, thank you for your pleasant comment. Khushbu Gupta, Hani Gupta, Pankaj Gupta, Anushri Gautam and Shubh Gautam. And Shubh Gupta is also there. So thank you for your comments. Yeah, I am very thankful and yeah, I have no words to say, but yeah, please give me the same support and love in the next videos also. And I would like to request you all of them to comment in part 2 also. If you have commented in part 1 also and you are viewing my part 2 also, so please do comment in part 2 also, because every comment and means a lot to me and in each every part. So coming to the part now, and sorry, I have said part. Coming to the topic now, that is how do bones move. As I have discussed you about, and you all know that bones are the basic structure and unit for our skeleton system, for our body, as well as for our working movements, as well as our मतलब जो हमारी बोन्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड विदाउट बोन्स वी आर नथिंग, वी कैन से. सो हाउ डू बोन्स मूव. अब ये काम कैसे करती हैं, हाउ डू दे वर्क, हाउ डू दे मूव. अब हम हैंड अपना मूव करते हैं तो हाउ बोन्स, द हैंड इज मेड अप ऑफ बोन्स, सो दैट इज व्हाट हाउ डू बोन्स मूव. सो सिंपली अगर हम कहें तो हाउ डू आवर हैंड मूव. सो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें. सो कमिंग टू द टॉपिक, close your fist and bend your arms. Do you feel a swollen part inside your upper arm? As you are able to see in the picture also, please do like that. Then they are saying there are muscles. Muscles भी होती हैं हमारी, present होती हैं bones के, मतलब साथ joint ही होती हैं. Muscles are found around the bones. Joint कह लो, around कह लो, that is same. So do not confuse. They are connected to the bones by another tissue called tendons. So जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारे साथ वर्क करती हैं, उनके अराउंड मसल्स होती हैं हमारी जो कनेक्टेड होती हैं बोन से, एंड अनदर टिश्यू होता है कोई जिसको हम टेंडन्स कहते हैं. टेंडन्स एंड बोन्स टुगेदर फॉर्म मसल्स, दैट इज व्हाट दे मीन. नेक्स्ट पैरा, when you bend your arm, your muscles contract and bulge so you can feel them. जब हम अपना हैंड जो है हम बेंड करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड ब्लज करेंगे, सो वी कैन फील आवर मसल्स. ओके, नाउ देयर इज व्हेन यू स्ट्रेटन योर आर्म दे एक्सपेंडेड अगेन, मसल्स वर्क इन पेयर्स. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द बोन इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. ओके, what does it means that जब हम अपना hand work कर रहे हैं, we are moving our hand, so it pulls the bone in other direction. जिस way में हम अपना hand move करवाना चाहते हैं, in that way our muscles as well as our bones move in pair. वो दोनों हमारी bones and muscles pair में work करते हैं. When one of them contract, the जो अब जैसे हमारा एक हाथ चल रहा है, we are moving our one hand, so our left hand or right hand will be in relax mode, right? And दोनों हाथ चलाने तो कोई बात ही नहीं है. Okay, then so it takes two muscles or okay, so this is they are saying, so it takes two muscles to move a bone because a muscle can only pull and not push. Means they are saying that two muscles
is needed to move a bone because muscle can not only pull not push. Muscle pull करी जा सकती है, push नहीं करी जा सकती. When you bend your arm, the bicep muscle contract and triceps expand. When you straighten your arm, the reserve happens. Such muscles pair are called antagonistic muscles. So you can see in the video that these are your triceps and these are your biceps. They are saying that when you expand your arm, जब आप अपना हाथ नीचे करते हैं, आपकी जो बाइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऊपर मसल्स के साथ एंड बोन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड थ्राइसेप्स एक्सपेंड होती हैं, थ्राइसेप्स नीचे जाती हैं. ओके एंड सच पेयर्स एज. फिर जब हम अपना हाथ सीधा करते हैं तो इसका उल्टा होता है, मीन्स द रिजर्व हैपेंस, इसका उल्टा होता है. सच मसल्स पेयर्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स. ऐसे पेयर्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स भी कहते हैं. Okay, hope you have understood this para, and it is a very important para. There are two parts and two questions that can be formed. Is this one, they are connected to the bones by another tissue called tendons. Tendons is a basic tissue you can learn, and you will go through this about in 8th or 9th class. Tendons fully explain, and such muscles pair wala antagonistic muscles. So please do read this very carefully. The next part, that is topic, and that is, can we see bones? So far we have learnt about the complete skeleton system, bones and joints, but we cannot really see bones as they are hidden inside our body. So how do we get to much information about them? Have you heard of X-ray? When someone get injured and the doctors want to check their bones, they do an X-ray. Scan. X-ray are special rays of light when are allowed to pass through our body for a very small time, less than a second. Okay, they pass through the tissue but do not pass through the bones. As a result, they make a shadow of the bone on a. इसके बाद का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. So before that I would like to make you understand this topic, that is, हमने बहुत पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बोन्स के बारे में एंड जॉइंट्स के बारे में, बट रियली वी कैन नॉट सी बोन्स क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर हैं. हम कैसे देख सकते हैं बोन्स को? उसके ऊपर हमारा मास है बॉडी का, ओके, फैट है हमारा, सो वी कैन नॉट, स्किन भी है, सो वी कैन नॉट सी आवर बोन्स. बट आप लोगों ने सुना होगा, आपकी मम्मी या फिर घर में किसी की भी अगर तबीयत खराब हुई होगी, कोई इंजर्ड हुआ होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर कभी हुआ होगा तो आपने सुना होगा कि एक्सरे हुआ है उसका. डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे करवाना पड़ेगा आपको. एक्सरे एक ऐसा वो होता है, वो आपको एक शीट देंगे, उसमें आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो उन्हें पता चल जाता है कि बोन्स कहाँ से कहीं टूटी तो नहीं है, कोई मतलब जॉइंट हिल तो नहीं है, तो वो चीज होती है एक्सरे. बहुत कम सेकंड में आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं, एंड मैंने आपको पूरा ऐसे ही बता दिया. So there is no need to just read this para. So coming to the next topic, how do other animals move? हमने देखा है, we have seen how the human body moves. हमने देखा है, हम खुद ही human है, तो we must have seen that how human body moves. Now let us learn about the gait of some other animals. अब हम सब दूसरे कुछ अलग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं. Firstly, we are going to go through earthworm. अर्थवॉर्म आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, या सुना तो होगा ही कि अर्थवॉर्म के बारे में. तो हैव यू क्लोजली ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल? जो अर्थवॉर्म होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी में ही आपको रेंगते हुए मिलेंगे. अगर आप कहीं सड़क पे हो तो बहुत ना के बराबर ही आपको देखने को मिल सकते हैं वो. सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेगमेंट. अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ. जो अर्थवॉर्म है हमारा, वो बहुत जैसे ऐसा होता है ना, जैसे देखिए आप पिक्चर में देखिए, ऐसे रिंग टाइप से बना होता है. सो वो रिंग जैसे ना एक हल्की सी स्ट्रिप, मतलब एक रिंग होती है, फिर एक हल्का सा होता है, वो आपस में अटैच्ड होते हैं बिल्कुल, तो हम उन्हें अर्थवॉर्म कहते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर होता है अर्थवॉर्म का. और हम इन्हें सेगमेंट्स भी ऑल्सो कहते हैं. हम इनका जो जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम रिंग भी कह रहे हैं, तो उसे हम सेगमेंट्स भी कहते हैं. दे आर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रिस्टल्स attached to the underside of these segments. These help the earthworm to get a grip on the ground while moving. अब
आपने देखा होगा जो जैसे सांप है, स्नेक का हम लेते हैं, वो बहुत इजीली आप लोगों ने देखा होगा, कभी सुना होगा, दैट इज वेरी कॉमन। तो उसका जो ऊपर का सरफेस होता है, चाहे वो कितना ही रफ हो, कितना ही रिंग हो या कितनी ही सेगमेंट हो, बट उसका जो नीचे का सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है एंड थोड़ा सा उसमें ऑयली भी होता है, बिकॉज दे कैन मूव इजली ऑन एनीथिंग। अगर वो जमीन पे भी मूव करेंगे, ऑन ग्राउंड भी मूव करेंगे, तो भी वो बहुत इजिली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी struggle. So that is what this means. Okay, so there is a picture of earthworm that is real. आप देखिए, मैंने आपको बताया रिंग्स होते हैं, आपको दिख जाएंगे रिंग्स। और जो इनका नीचे का वो होता है पोर्शन, मतलब नीचे का जो सरफेस जो ग्राउंड पे लैंड होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ कह सकते हैं हम, वो होता है। तो उसके बाद आता है द अर्थवर्म हैज नो बोन्स, इट मूव्स ओनली विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अर्थवर्म्स के पास कोई बोन नहीं होती है, ये आप लाइन मार्क कर लीजिए। द अर्थवर्म्स हैज नो बोन्स एंड कैन बी मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड can be asked in any question, filling the blanks or MCQs, that name any animal that have no bones. Okay, these muscles expand and contract alternately while moving. The earthworm extends the front part of the body, keep the rear end fixed. Then it fixes the front end and releases the rear end to further help in the movement. It secretes a similar substance that sticks to its body. You know, earthworms are known as farmer's friend. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क ऑल्सो दिस। यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स। ये बहुत है, आपको 8th में भी बहुत हेल्प करेगा। दिस इज बिकॉज दे मूव, दे कीप ईटिंग द सॉइल एंड देन थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड पार्ट, सो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ पोर्स इन द सॉइल दैट हेल्प टू एयर टू गेट इनटू द सॉइल। ये जो पैरा है यू नो से एंड तक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है। 9th में भी आप रीड करेंगे इस पैरा को, सो प्लीज जस्ट लर्न दिस पैरा बाय होल ऑफ योर हार्ट। ओके, होल हार्ट से याद कीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज activity. Sorry, I will not tell you because I don't believe in doing these such type of activity, but if you want me to do or to explain new activities also, please comment in part 2. Then in next video or next chapter that I will bring, I will definitely tell you about this activity. अब आती है स्नेल की बारी। स्नेल बहुत कम सुना होगा, रेयरली वर्ड सुना होगा, रेयरली देखा होगा, रेयर है बिल्कुल। ओके, तो स्नेल एंड सॉफ्ट बॉइल्ड एनिमल विदाउट बोन्स, ये भी विदाउट बोन्स है, ठीक है। तो ये आपको जो दे रखे हैं ना इसमें, वो बहुत मतलब जो इन्होंने कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, तो प्लीज उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज जब कुछ चीजें होती हैं, सारी चीजें नहीं होती हैं, तो जो कुछ चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया करिए। And coming to the part, snail are soft-bodied animal without bones. A snail has a shell over its body with its mainly protection. It has large, flat, muscular foot made up of strong muscles that comes out of the shell when the snail has to move. The foot secretes a slimy substance to make a slippery track on which the snail crawls. Okay. तो स्नेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आप पिक्चर देख सकते हैं, तो शेल होता है इसका, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसकी आई यहाँ होती है, माउथ यहाँ होते हैं, टेंटिकल और फुट और हेड होता है। तो स्नेल जो है वो इसमें बहुत कम दे रखा है उसके बारे में, बट मैं आपको अपने पास से बताना चाहूंगी। बहुत स्लिपरी होती है उसकी स्किन, क्रॉल्स होते हैं, क्रॉल्स मतलब झुर्रियां, जैसे आप कहते हैं ना, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो झुर्रियां जो आप कहते हो, आपके फेस पे जो झुर्रियां हो जाती हैं, वैसे इसकी बॉडी पे आप देख सकते हो। उससे ज्यादा आपको दिखेगी झुर्रियां, मतलब आपको ऐसे क्रॉल्स में कहूंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सो आपकी लैंग्वेज में अगर कहूं तो झुर्रियां जो फेस पे हो जाती हैं। ओके, तो वो ओके। नाउ कमिंग टू कॉकरोच। कॉकरोच तो बहुत इजी है, आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब पकड़ा भी होगा कई बार, तो मारा भी होगा जान से। तो कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। इट हैज अ हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग द आउटर स्केलेटन, कवर होता है उसका हार्ट, ओके, ऊपर। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो स्केलेटन उसका होता है वो बहुत सारे जॉइंट से बना होता है। And it helps to protect the body of the cockroach. There are 2 pairs of wings attached to its breast which helps it fly. Okay, fly भी करता है cockroach, ये तो पता ही होगा।
It has 3 pairs of legs with the joints that help it to walk and climb. The strong breast muscles coordinate the movements of its wings and legs. तो कॉकरोच के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. इसमें बहुत कॉमन चीजें लिखी हैं कि उसके इतने लेग्स होते हैं, इतने वो होते हैं, इतने वो होते हैं. एंड आपने कॉकरोच देखा भी होगा. नेक्स्ट इज फिश. ये भी आपने देखी ही होगी, ये भी आपको पता ही होगा. और फिर हम फिश की बात करते हैं. यू मस्ट हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ फिश, ऑल ऑफ देम हैविंग सिमिलर बॉडी शेप. देयर बॉडी इज नैरो एट द एंड एंड वाइडर इन द मिडल. सच शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन शेप. मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो उसकी फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है. स्ट्रीमलाइन शेप अगर ये बहुत मतलब पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ लीजिए, या आपकी फिलअप्स में भी आ सकता है. इट हेल्प्स द फिश टू कट वाटर विद मिनिमम फोर्स. जब वो आपने देखा फिश तैरती, कभी आपने सोचा है वो कैसे तैर पाती है? व्हाट इज द मतलब उसके पास क्या ऐसी एबिलिटी है जो वो तैर पा रही है, राइट? तो हम उसके लिए इसको कहते हैं. नाउ नेक्स्ट है इट हेल्प्स द फिश टू कट वाटर. ये तो पढ़ लिया. द स्केलेटन ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स. व्हेन इट मूव्स इन वाटर द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड while the back end moves on the opposite side. Immediately the side changes. The fish jerks forward. The tail fin helps in the movement. टेल मूवमेंट में हेल्प करती है. मिड लाइन फिन जो होती है वो उसकी जब वो बॉडी को पानी को काटते हुए जाती है तो उसको हेल्प करती है. पेयर्ड फिन्स तैरने के नहीं होते हैं ऑफकोर्स. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स द स्केलेटन सिस्टम ऑफ बर्ड इज डिजाइन फॉर फ्लाइंग. उनका जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा सीधा है ना हम मतलब कि तैरना तो अब आजकल स्विमिंग आ गई है, पहले जमाने में ये नहीं होता था. अब हम ह्यूमन की बात करें तो उसके पास ऐसी स्केलेटन सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्लाई कर पाए. बर्ड्स का है, फिश का ऐसा है कि वो तैर सके, और कॉकरोच का ऐसा है वो उड़ सके, वो उड़ भी सकता है, चल भी सकता है. अर्थवर्म का है वो रेंग सकता है. ओके. कॉकरोच का है वो तो मैंने आपको बताया. सॉरी स्नेल बचा है ना, तो स्नेल का भी वो भी रेंगती है. ओके. सो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया. फिर हमारा आता है स्नेक. बर्ड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो उड़ती हैं, डाउन स्ट्रोक करके उड़ती हैं, अप स्ट्रोक करके उड़ती हैं. इसमें बाकी और कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं. इफ यू वांट मी यू कैन स्टडी एंड कमेंट. आई विल जस्ट रिप्लाई यू एंड क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स ओनली. अब आते हैं स्नेक के ऊपर. हैव यू सीन द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक? टेलीविजन और एनीवेयर एल्स. डज द स्नेक मूव स्ट्रेट? कभी सीधी घूमती है स्नेक? नहीं. A snake always moves in loops. Loops मतलब टेढ़ा मेढ़ा. ऐसे जैसे वो टेढ़ी इधर से टेढ़ी फिर इधर से टेढ़ी, जैसे हम कहें आम भाषा में तो ऐसे करके, है ना, दिस टाइप. ऐसे जाता है फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, है ना. Have you seen the movement? ये हो गया. A snake always moves in loops. It has a longer backbone and thin, long muscles connected to each other. The body of a snake is covered with scales which help it grip on the ground. When it moves the body of the snake from loops, each loop pushes forward and helps the snake to move fast. ठीक है. Let's recap. अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. Skeleton system form the framework of a body. मैंने बताया आपको मेड बॉडीज ज्वाइन टुगेदर एंड फिक्स मूवेबल जॉइंट्स. दे आर 3 मूवेबल जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट, हिंग एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. The skeleton system is made up of skull, ribcage, backbone and grid lines and the limbs. Okay? फिर आता है bones are covered by cartilage and connected to each other by ligaments. Bones move with the help of contraction and expansion of muscles. Keywords आप देख लीजिएगा. अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे. एक्सरसाइजेस है, पहले का मैं आपको बता देती हूँ क्या है. वैसे तो आप खुद ही ट्राई करिए करने का. बाकी आपका ये सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं आपको, आप देखिए ये सॉल्यूशंस हैं. फिलअप्स में फर्स्ट है ज्वाइंट, सेकंड है पाइवट, थर्ड में हिंग एंड हिंज जॉइंट मैंने आपको बताया था ना. फोर्थ में है न्यू बॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स, मैंने बताया था. एंड ह्यूमन के पास कितनी बोन्स हैं? प्लीज डू कमेंट दिस क्वेश्चन. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट इट. The body shape of a fish is streamlined. मैंने अभी बताया जस्ट आपको. C. Okay. Now next is dash bones, limbs, cartilage, muscles, nerves, ginal and facial. ये आपकी मैचिंग है, ये आपके ट्रू फॉल्स है. आफ्टर दैट आपका आता है MCQs
ओके, वेरी शॉर्ट। मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं क्योंकि बुक में नहीं होते हैं, अलग से कॉपी में करने पड़ते हैं। एंड इफ यू वांट मी टू डू दिस ऑल्सो, सो प्लीज डू कमेंट। आप मुझे जो भी कमेंट में लिखेंगे, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट एंड ऑलवेज रिप्लाई योर कमेंट। इफ यू हैव अ डाउट एनी, यू कैन कमेंट मी. So guys, I'm making my videos with all my heart, and yeah, you know how much energy we need to make a video, and if you respect my energy and time, so please do subscribe my channel. And thanks for watching. Yeah, love you guys, and stay healthy and safe.